Good morning everyone and welcome to the class. We are doing chapter New Centers of Power, and under this chapter we are doing Israel. As we have started our discussion regarding Israel in the last chapter, we have seen how Israel, what are the factors which make Israel a new center of power. We have seen that economy is highly developed, the economic growth rate and the economy itself is very large, and not only the economic development but human development is also very high. And we have also seen that Israel is has is called a startup nation. Then diamond industry is also very important in the country. Only by polishing and cutting we see that the share of Iraq and the share of Israel in the export of diamond is around 23%. So these are the factors. Then we have also seen that research and development, in the field of research and development, the achievements of Israel is very high. As we have seen that the most advanced companies like Intel, Microsoft, Apple, all these companies have opened their first overseas research and development facilities in Israel only. Then we have also discussed how the number of companies of Israel is second in NASDAQ, which are listed in NASDAQ. So these are the important elements of this Israel as a new center of power. Then we have also seen that Israel is a dry region. Still, due to efficient water management system, there is water is not scarce in this region. People, of course, by the effort of the government, everything is done in a very effective manner. And we have seen also that drip irrigation is the contribution of Israel only. And in agriculture, though we have seen that Israel has to import wheat. So the condition is such that because of being a dry region, the agricultural production is not very high, but still it is achieving its goal in a very effective manner. And then we have seen that its intelligence, its military, compulsory military training is there for all the citizens. So these are some unique features of Israel. And now we will see some other features or some other factors which make it a न्यू सेंटर ऑफ पावर. लाइक जो इराक की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, सो द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इराक this intelligence agency is placed among the top 10 intelligence agencies of the world in year 2020. तो ये दुनिया की टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज में इसका नाम आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. हमारे भी कंट्री में इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है? हमारी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना. तो इसी तरह का इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, जो कि टॉप 10 में जिसकी गिनती होती है. इसके अलावा अगर हम अदर अचीवमेंट्स देखते हैं इज़राइल का, तो इज़राइल ने साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी अचीव किया है. जैसे कि आज के समय में टुडेज वर्ल्ड इज डिजिटल वर्ल्ड, है ना. एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, एंड इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, in order to be a new center of power, it is very much important that cyber related strength must be there.
And in connection with Israel, we see that its cyber security is very advanced, and it has achieved a lot in this field. So this is also one of the important factor which make it a new center of power. Other than this, we see that its defense system is also very powerful. It is the fifth largest exporter of arms. डिफेंस सिस्टम में अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, फिफ्थ लार्जेस्ट ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स है, जो कि इसके लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है इसको. अदर देन दिस, अगर हम इज़राइल की और चीज़ों पर देखें तो यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं. इधर हाल फिलहाल में इसके एनर्जी रिसोर्सेज नेचुरल गैस के रिज़र्व का पता चला है, और सोलर एनर्जी को तो टैप किया ही जा रहा है, उसको डेवलप किया ही जा रहा है. तो एनर्जी के फील्ड में भी इसके पास रिजर्व है, और ये आज के समय के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल मोस्ट ऑफ देम. तो जो भी नॉन रिन्यूएबल है, अगर उसका रिजर्व आपके पास है तो वो एक आपका पावर बन जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. एंड जो रिन्यूएबल है आप उसको भी डेवलप करें. तो इस तरह से एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी के हिसाब से भी इसको हम देखें तो ये पावरफुल है. और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसकी जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. एंड एज वी हैव सीन, it was ranked 22nd in the Human Development Index by UNDP. तो 22nd रैंक पे पहुंचने का मतलब ही है कि एजुकेशनल एंड हेल्थ रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से. देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच मेक इट अ न्यू सेंटर ऑफ पावर. Okay, and other than this, we see that Israel has a free trade agreement with America, with with EU as a whole, with all the countries of European Union, then Canada, Mexico, Egypt, Turkey. These are the nations with which the country has done free trade agreement. So obviously, if Israel is having free trade agreement with countries like America and EU, it is Canada, such powerful countries, so it is really going to enhance its power in near future. और भी ज़्यादा जितना पावर है ये उससे भी ज़्यादा अभी पावरफुल बनेगा. तो फ्री ट्रेड FTA, इसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA. FTA with US, EU, Canada, Mexico, Egypt, and Turkey. So we can say कि it has achieved a lot, and it has the potential to achieve more, even more. So
at present we are studying Israel as a new center of power, and it has really become a new center of power in spite of being a very small country area wise. Not only this, its location, as we have discussed, its birth also, how it has taken birth in a very conflicting situation, and after the establishment of Iraq or Israel, we can say after जब इसराइल एग्जिस्टेंस में आ गया, उसके बाद भी अरब वर्ल्ड के साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चलता रहा। तो वैसे मिडिल ईस्ट में इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि कोई भी सारे मुस्लिम अरब मुस्लिम्स हैं, ये इट इज़ द सिंगल नॉन मुस्लिम कंट्री इन मिडिल ईस्ट। तो इस हिसाब से इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, इस जगह पे पहुंचा है कि आज हम इसको एक न्यू सेंटर ऑफ पावर में इंक्लूड किया है हमने, और इसके अंदर और भी पोटेंशियल है, ये अभी और भी डेवलपमेंट्स को अचीव करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। हमने सारे न्यू सेंटर ऑफ पावर में जो भी कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, रसिया, इज़राइल, इन चारों को कर लिया। जो भी एसोसिएशन है, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क एंड ब्रिक्स, ये सब हो गया। इसमें जो आपको बुक में जिनका कंटेंट मिलेगा वो है EU, आसियान, सार्क एंड चाइना। अब इसके अलावे जो भी है, ब्रिक्स है इधर एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज़ में, और इधर कंट्रीज़ में चाइना, रसिया और इज़राइल। इसका कंटेंट बुक में नहीं है। यू विल गेट सम कंटेंट फ्रॉम द रेफरेंस मटेरियल, जो आपका सिलेबस का PDF है, विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, है ना। तो उस सिलेबस की PDF में कुछ रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है। उसके अलावे कुछ एडिशनल जो पॉइंट्स हैं, जो एडिशनल नोट्स हैं, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय मी, है ना। नोट्स वो आपको दे दिया जाएगा। और इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में आता है, वो उसको हम बता रहे हैं। सो जो मोस्ट कॉमन, क्योंकि बहुत सारे न्यू टॉपिक्स हैं इसमें, और जो न्यू टॉपिक्स है उससे मोस्टली ट्विस्टेड क्वेश्चंस कम से कम होने की पॉसिबिलिटी है। जो क्वेश्चंस होंगे वो एक सीधा जो क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत ही सिंपल और कॉमन क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, वो है ओके, एक्सप्लेन डैश एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब ये डैश में आपके जो 8 आपने पढ़ा है, EU, आसियान, देन सार्क, ब्रिक्स, चाइना, इंडिया, Russia, and the another one is Israel। ये सारे इसमें आ सकते हैं। एक्सप्लेन यूरोपियन यूनियन एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक्सप्लेन आसियान एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक्सप्लेन सार्क एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक्सप्लेन ब्रिक्स एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक्सप्लेन चाइना एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक्सप्लेन इंडिया, एक्सप्लेन रसिया, एक्सप्लेन इज़राइल। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है कि जो उसके स्ट्रेंथ हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन के बारे में, ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन यूरोपियन यूनियन एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, तो जो यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेंथ है उसको हम बताएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि इकोनॉमिकली जो EU के कंट्रीज़ हैं, उनकी GDP जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर जो वर्ल्ड ट्रेड में उनका शेयर है
वो उनको पावरफुल बनाता है ना। देन उनका जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी काउंसिल में जो 2 मेंबर्स हैं इसके परमानेंट मेंबर्स, है ना, ये इसको पावरफुल बनाता है। And not only this, there are so many members of European Union which are the non-permanent members of Security Council. So this enhance the influence of European Union in political and diplomatic matter, and that is the reason we have seen that how EU is able to influence some of the US policies. And so these are the strength. And then we have seen that militarily also the power of European Union is very strong. It is the second largest. Its combined armed force is the second largest in the world, and whatever it spends on defense is second after the US. So these are the strength, these are the factors which make European Union a very a new center of power. तो इसी तरह से आपके हर क्वेश्चन का जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर में आपको उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ही देना है, ठीक है। अब जैसे दूसरा हमारा हो जाता है कि आसियान, एक्सप्लेन आसियान एज ए न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि आसियान का अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो इस तरह का कुछ भी नहीं है जिसमें कि उसके फैक्टर्स, जैसे अगर हमने अभी EU का जो डिस्कस किया उसको आप देखेंगे बुक में आपकी, इट इज़ गिवन ऑन, आई एम टेलिंग यू, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 में जो फर्स्ट कॉलम में लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है कि हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक EU वेरी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल। तो पेज नंबर, यू मस्ट रिमेंबर इट, पेज नंबर 53 फर्स्ट कॉलम की सेकंड पैराग्राफ से ये स्टार्ट होता है और पेज नंबर 54 में ये कंटिन्यू करता है। सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ वहाँ तक ही कंटिन्यू करता है। लास्ट पैराग्राफ में उसकी वीकनेसेस आ जाती है ना। तो ये दो जो है ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि आसियान। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आसियान के पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं आपके बुक के अंदर। इसको हमें खुद से देखना होगा कि आसियान को अगर एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के फॉर्म में पूछा जाता है तो उसमें आप किन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसके जो पॉइंट्स होंगे उसको अभी मैं लिख रही हूँ। I will be writing only points. You will have to start your answer with proper introduction. जैसे अगर आसियान के बारे में क्वेश्चन है तो आसियान है क्या, ठीक है, क्यों बना, and then you will have to come to the question कि what are the factors which make ASEAN a very powerful, a new center of power we can say. Okay. So the first point we can say that the economy of ASEAN countries is growing faster than that of US, EU and Japan. This is the most important strength of ASEAN, है ना। इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। Then the next point is
ASEAN way, which we have discussed how it's a non-confrontationist, informal and cooperative way of interaction among the countries. Okay, so that is also its strength. It does not believe in कि कोई एक country बड़ा है छोटा, everyone is equal, है ना. So this is also one of the factors which make it very powerful. Okay, and then we see that ASEAN, the members of ASEAN, through several agreements, the members of ASEAN have promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. So this is also its strength. So by number of agreements, the member countries have agreed to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, peace, cooperation, neutrality, non-interference, and respect for national differences and sovereignty. Sovereignty, SOVEREIGNTY, है ना. तो ये हुआ हमारा. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे, यू मस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन अ प्रॉपर मैनर. इट इज़ स्कैटर्ड इन योर चैप्टर. जहाँ कहाँ पर ये स्कैटर्ड है जिसको हम एक जगह पे करके आपको बताया जा रहा है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, and then you should also mention ARF, ASEAN Regional Forum, which was established in 1994, and the main purpose, what was the purpose? The purpose was to coordinate between the security and foreign policies of the countries, है ना, member countries. तो ARF ये भी इसको पावरफुल बनाता है ना. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, then establishment of this ASEAN community, which has three pillars. You have to write the, I don't need to write it because it is given very clearly in the book. ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community. And by establishing these communities, what was the aim of ASEAN? The aim was to go
beyond this economic sphere, है ना. It went beyond the economic sphere. It reached to the social sphere and security sphere. So that is important. You have to write the name of the pillars and then what was the purpose for the establishment of these ASEAN community. It was by establishing these three pillars, ASEAN has broadened its objective. ठीक है, I'm telling you, you can write it down. By establishing ASEAN community, it has broadened its objective beyond the economic and social sphere. Okay, so this is your answer. Year इसमें आपको बताना है 2003 में भी establish हुआ था. These must come in your answer. And now we see, and now the next point. The member countries are focusing on creating a free trade area. They are trying to create a free trade area in order to for investment, labor and services. ओके, तो ये हो गया आपका. इसके बाद हम देखेंगे एक और पॉइंट है, वो ये है कि यूएस एंड चाइना wants to do free trade agreement with ASEAN. So this is also its strength. US, China willing to do free trade agreement with ASEAN. And then the last one will be the ASEAN vision of 2020. Okay, so this is your answer. तो इसमें आपको स्ट्रेंथ बताना है, तो आपको पूरा जितना भी आसियान का दिया हुआ है उसमें से ये सारे स्कैटर्ड है. जैसे हमने देखा ना कि जो यूरोपियन यूनियन का स्ट्रेंथ था वो आपको एक जगह पे लिस्टेड है. पेज नंबर 53-54 में तीन पैराग्राफ ऑलमोस्ट जो भी है उसको आप क्लियर कर लेंगे जैसे मैंने बताया है ना. पेज नंबर 53 से 54 तक में दिया हुआ है, बट ये आपको एक जगह पे नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करनी होगी. देन जो नेक्स्ट है हमारा, जिसके बारे में इस तरह का क्वेश्चन हमारा हो सकता है, एक्सप्लेन सार्क. Explain SAARC as a new center of power. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो इसमें आपके जो आंसर में चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी कि साउथ एशिया का क्या इम्पोर्टेंस है इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो साउथ एशिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे इंडिया जो है वो एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बन चुका है, तो ये इसमें इंक्लूडेड है. ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा. और इसके बाद हम जो इसमें आएगा वो ये होगा कि साफ्टा जो हमने किया है ना, तो इसके जो भी पॉइंट्स हैं उसको कल हम लोग
लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जो साग के स्ट्रेंथ है उसको कल हम लोग डिस्कस लिखेंगे।